Good morning, everyone. So today, myself Vikesh Kumar, professor working as in Metro College of Nursing. So today, my subject is the nursing management. So today, I'm dealing with the standing order and nursing protocols we are following in the hospital or in the community health center. So there are some of these standing order we are following or nursing protocols which is given by the doctor or any higher authority which we have to follow as in form of standing order. So we'll see the standing order and nursing protocols. So standing order and nursing protocols क्या होते हैं? One by one we have to see. And standing order. Standing order means standing order are specific instructions regarding the treatment for condition that nurses and other health workers may encounter in home, school, industries where a doctor is not readily available. The standing order are intended to provide the treatment only in the emergencies and temporary in the absence of a doctor they should be limited. So स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि एक प्रकार का ये इंस्ट्रक्शन होता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है जो हम ट्रीटमेंट के बारे में या किसी भी कंडीशन के बारे में नर्सेस को फॉलो करना पड़ता है, अदर हेल्थ वर्कर को फॉलो करना पड़ता है, या वो घर पे हो या स्कूल के अंदर हो या इंडस्ट्रीज के अंदर हो, जहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होता, इजीली अवेलेबल नहीं होता है। उस कंडीशन में स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं जो एक ट्रीटमेंट और पेशेंट की कंडीशंस के बारे में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो वी हैव टू फॉलो दीज ऑल instructions which is given by the any higher authority or making any higher person as in form of doctor where the doctor is not readily available. So in that we have to follow these standing order. So the standing order are intended to provide the treatment. ये जो standing order होते हैं ये हमें treatment provide कराते हैं in the emergency condition or in form of emergency temporary when the doctor is absent. ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो होते हैं हमें ट्रीटमेंट अवेलेबल कराते हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जहां पर टेम्पररी, जहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, इमीडिएटली होना चाहिए. सो दिस इज द स्टैंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट विल सी द पर्पसेस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर. So we have to see the purposes of the standing order. First purpose is to meet emergency situation in rural area. It means रूरल एरिया के अंदर जहां इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहां पर स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरत होती है. सेकंड जो पर्पस है वो है आपका टू डिलीवर केयर एट होम, स्कूल एंड कम्युनिटी. जहां पर इस स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू हम जो केयर होती है उसको उनके घर पे भी दे सकते हैं, पेशेंट के घर पे भी दे सकते हैं, स्कूल के अंदर भी दे सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर भी हम अवेलेबल करा सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर. थर्ड है आपका टू प्रोवाइड द टेम्पररी ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ए डॉक्टर. जहां पर डॉक्टर एब्सेंट होता है, नहीं होता है, उस कंडीशन में हम टेम्पररी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस इज आवर स्टैंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट फोर्थ स्टैंडिंग ऑर्डर इज द पर्पस टू प्रमोट हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी. कम्युनिटी एरिया के अंदर हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना. So these all four purposes of this standing order. So next we'll see the general standing order instruction. जो general standing order instructions जो होते हैं we have to see one by one. General standing order क्या होते हैं instructions. So in that standing order instructions should be issued jointly by an authorized medical officer, a nurse or a community committee with a nurse representative. जो हाईली पर्सन होते हैं, ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर होते हैं या नर्स होती है या कमेटी मेंबर होते हैं या नर्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो होते हैं वो इनको जॉइंटली इश्यू करते हैं. जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको इन पर्टिकुलर जो मेंबर होते हैं, जो टीम होती है, उनके द्वारा जॉइंटली इश्यू किया जाता है. सेकंड जो है आपका qualified professional community health nurse working in the rural area readily available to the family. So standing instructions must be used with a caution and discretion. So qualified professional community health nurse जो होती हैं जहाँ रूरल एरिया के अंदर काम करती हैं वो फैमिली के अंदर अवेलेबल हमेशा रहती हैं. So that we have to follow the standing instructions with a caution and discretion.
हमें सावधानी से और पूर्णतः हमें उसको फॉलो करना है। जहाँ पर क्वालिफाइड प्रोफेशनल कम्युनिटी हेल्थ नर्स जहाँ रूरल एरिया के अंदर काम करती हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, उस कंडीशन में वहाँ की फैमिलीज को एक प्रकार से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के रूप में हम विद कॉशन के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। थर्ड है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर प्रमोट हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी। जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है वो कम्युनिटी के अंदर हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करता है। फोर्थ जो है आपका मेडिकल ऑफिसर इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूइंग द स्टैंडिंग ऑर्डर। जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो स्टैंडिंग ऑर्डर को इश्यू करने में लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो है आपका रिड्यूस द डेंजर इन द एक्यूट कंडीशन। ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं वो हमारी एक्यूट कंडीशन में डेंजर से कम करते हैं, मतलब डेंजर होने की स्थिति को कम रखते हैं, कम करते हैं। Then create feelings of responsibility among members of the health team। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग्स होती हैं हमारे अपने मेंबर्स के, हेल्थ टीम की जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स होती है उनको क्रिएट करता है। जो जहाँ पर जो हेल्थ टीम मेंबर जो एक साथ जहाँ काम कर रहे हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो उस कंडीशन में दे हैव टू फॉलो द स्टैंडिंग ऑर्डर व्हेन द एब्सेंस ऑफ द डॉक्टर। द नेक्स्ट है एवरी हेल्थ नर्सेस, प्रत्येक हेल्थ सर्विस स्टैंडिंग ऑर्डर को इशू करनी चाहिए जहां पर प्रत्येक एरिया हेल्थ नीड्स उपलब्ध कराई जा सके। दिस इज द जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस। देन अगेन वी हैव टू सी द रोल ऑफ द नर्स इन द स्टैंडिंग ऑर्डर। रोल ऑफ द नर्स क्या रहता है, नर्स का क्या रोल रहता है स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर। वी हैव टू सी द कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी स्किलफुल इन रिकॉर्डिंग हिस्ट्री एंड इन फिजिकल एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटी। जो एक नर्स होती है वो क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक स्किलफुल होती है जहाँ पर हिस्ट्री को रिकॉर्ड करती है और फिजिकल एग्जामिनेशन करती है। आफ्टर द डूइंग द हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन she should find out the abnormality of the patient, abnormality of the disease condition. Then again, second, community health nurse should be prompt in detecting appropriate action for the particular situation। जहाँ पर abnormality या कोई emergency situation आती है, पता लगाने के बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्स उस कंडीशन में एक प्रॉम्प्ट एक्शन फॉलो करती है, जहाँ पर हमें मेनली फोकस करना है कि कौन सी प्राइमरी केयर हम दे सकते हैं या कौन सी हम इमरजेंसी केयर दे सकते हैं सो दैट पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सके। देन थर्ड है मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द वाइटल्स एंड अदर केयर गिवर टू द पेशेंट। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो क्या करती है कि जो वाइटल साइंस होती है उसको रिकॉर्ड करती है, या जो भी केयर दे रही है पेशेंट को उसके अंदर वो उसको रिकॉर्ड करती है कि क्या केयर दी गई है पेशेंट को, क्या उसके वाइटल साइंस हैं, उन वाइटल साइंस के बारे में उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग होती है। शी शुड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो नर्स शुड हैव द in thorough knowledge to identify actual problem of the patient and to plan the appropriate nursing intervention। नर्स क्या करती है कि जो पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो उसको फाइंड आउट करती है, फाइंड आउट करने के बाद उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए एक अप्रोप्रिएट प्लान करती है। सो दिस इज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स रोल। द नर्स शुड डेवलप ए गुड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल और फैमिली। नर्स थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को अच्छी तरह से डेवलप करती है। कहाँ पर डेवलप करती है, जो इंडिविजुअल पेशेंट होते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके मध्य या उनके बीच में गुड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को डेवलप करती है, एक नर्सिंग का रोल होता है। नर्स शुड यूज रेफरल सिस्टम इफ इट इज पॉसिबल। जहाँ पर रेफरल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जहाँ पेशेंट को रेफर करना है, यदि पेशेंट जहाँ पर उसको हैंडल नहीं किया जा रहा है या सीवियरिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, इमरजेंसी सिचुएशन और ज्यादा डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में शी शुड हैव द authority to refer the patient to the other department or other hospital. So nurse should inform the health officer immediately if there is a communicable disease। यदि किसी भी पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज होती है किसी विलेज के अंदर या अर्बन एरिया रूरल एरिया के अंदर, वो नर्स जो है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुरंत हेल्थ ऑफिसर को इन्फॉर्म करे।
Then keep medication safe and ready to follow the standing order. नर्स का एक रोल रहता है कि सभी मेडिकेशंस को सेफ रखे, रेडी रखे, टू फॉलो द स्टैंडिंग ऑर्डर। कब कौन सी मेडिसिन कब देनी चाहिए, कब देनी है, हमें किस रूट से देनी है, वो एवरीथिंग शुड बी कीप सेफ एंड रेडी। इंश्योर ए सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट। ऑलवेज पेशेंट के लिए एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट इंश्योर करती है। The recording and reporting is an essential part of the community health services. Community health services के लिए एक essential part है recording and reporting करना। ये एक नर्स उसको फॉलो करती है। So these are the role of the nurse in the standing order. So next we'll see the types of the standing order. There are three types of the standing order. First is a institutional standing order. Second one is specific standing order. Third is the general standing order. There are three types of the standing order. We'll see in one by one. Then first, what do you mean by the institutional standing order? Institutional standing order का मतलब होता है they are meant keeping in mind available resources, staff position and objective of a medical institution or hospital. इसका मतलब होता है कि हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हमारे पास सारे सोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, स्टाफ पोजीशन हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव है जो हम फॉलो कर रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। तो वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग ऑर्डर वेयर वी कैन हैव द अवेलेबल रिसोर्सेज, स्टाफ पोजीशन एंड ऑब्जेक्टिव so that we can provide the better care to the patient. Ex standing order of PSC. Ex standing order of PSC का मतलब होता है कि दो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उनमें PSC के लिए एक एक्स स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, वी हैव टू फॉलो। दैट इज इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग ऑर्डर। जहाँ हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहां से पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए स्टैंडिंग एक्स स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, जहां पर अपना हम काम कर सकते हैं, जाकर के ये स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं विलेज एरिया के अंदर। सो दीज आर, इस कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस होने चाहिए, स्टाफ पोजीशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, ये एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंट। सो सेकंड इज अ स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर है दीज ऑर्डर आर मीन फॉर। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब कि ट्रेन मेडिकल पर्सनल, मेनली द नर्सेज, जो नर्सेज होती हैं, ट्रेन पर्सनल मेडिकल पर्सनल होती हैं, टेक्निकल नॉलेज है, he should have specific skills, so where we can implement these order। जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑर्डर होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक ट्रेन्ड नर्स होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट दीज स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर। एक्स गिविंग केयर एट, हाँ मतलब जहाँ पर हम घर पर केयर दे रहे हैं या किसी पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद इंजेक्शन लगा रहे हैं या ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर या रूरल एरिया के अंदर, वी शुड हैव ऑल दीज कंडीशंस सो दैट वी कैन फॉलो द स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर इन प्रॉपर मैनर। देन थर्ड है आपका जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर। सो जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जहाँ लार्ज पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है बट रिसोर्सेज बहुत कम है, वहां पर इस स्टैंडिंग ऑर्डर को उपयोग में लिया जाता है, जहाँ पर जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो हेल्थ केयर मैसेज होते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं बाय द हेल्थ एजुकेशन के द्वारा या कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के द्वारा या कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अंदर या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम या कोई भी हम वैसी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ड्रामा करते हैं, तो उसके थ्रू सम ऑफ दी जो मैसेज होते हैं वो उनका एक पर्टिकुलर हम उसको सप्लाई करते हैं या उनको पर्सन को फोकस करते हैं या उनको एक्सपोज करते हैं, जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पर बहुत कम है, शॉर्ट है, बट एरिया बहुत ज्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन ज्यादा है, उस कंडीशन में जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। एक से प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट एड्स, मतलब जो एड्स पेशेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में हम एक से प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर। सो नेक्स्ट विल सी द एडवांटेजेस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या एडवांटेजेस होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर? मेनली स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर जो एडवांटेजेस हैं
वो है आपकी कम्युनिटी स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड द टाइमली ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान हम उसको कम्युनिटी के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम उनको टाइमली ट्रीटमेंट अवेलेबल करा सकते हैं। सेकेंड है दे एनहेंस द क्वालिटी एंड एक्टिविटी ऑफ द हेल्थ सर्विस, मतलब हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी और एक्टिविटी को बढ़ाना, एनहेंस करना। Then they provide feeling of confidence, responsibility in the nursing staff and other health worker. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स होती है, उसको हम अवेलेबल कराते हैं बिटवीन द नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ वर्कर के अंदर इस स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू। दे नेक्स्ट जो है दे हेल्प टू डिसेंट्रलाइज हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको डिसेंट्रलाइज करने में हेल्पफुल होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। मतलब जहाँ पर डॉक्टर नहीं है हम उसको अपने तरीके से उन चीज़ों को अपने रूप में हैंडल कर सकें, क्योंकि दिस इज आवर अथॉरिटी कि हम एक दूसरी चीज़ों को एक साथ समेट करके उन चीज़ों को हम अवेलेबल करा सकें और उनको स्मूथली रन कर सकें, डिसेंट्रलाइज कर सकें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे हेल्प टू स्ट्रेंथन द प्राइमरी इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में जो प्राइमरी सर्विसेज होती हैं उनकी मजबूती प्रदान करने में हेल्पफुल होता है। जो कम्युनिटी के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको मजबूती प्रदान करने में ये हमें स्टैंडिंग ऑर्डर हेल्पफुल होते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस। सो वी हियर इज द टॉपिक इज द स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोटोकॉल जो होते हैं हम कैसे फॉलो करते हैं। सो हियर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी इज कवर। हियर इज द पर्पस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या पर्पस है इसके। जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर के इंस्ट्रक्शंस हम क्या करते हैं। देन नर्स का क्या रोल रहता है स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर, कितने टाइप्स के होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, इंस्टीट्यूशनल है और स्टैंडिंग ऑर्डर, स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर है, जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर है। इंस्टीट्यूशनल किस तरह का होता है, स्पेसिफिक किस तरह का होता है, जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, and some of the advantages क्या हैं. So these all aspect of the things is concluded in this topic is very relevant topic where we can study and we can have some of the knowledge and skills so that we can provide free from education, free from services to the community or in the urban area. So this is my overall topic, and I'm very thankful to everyone, those who are listen this topic carefully, and if any doubts they have to discuss with me. Hello. Next class.